آج ہم نے اپنی قسمت خود باندھ لی ہے، یا ہم جیتیں گے یا یہ زمین ہماری قبر بنے گی۔ تم فارس کے سپاہی ہو، آج تمہاری زنجیریں تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہیں۔ سالار، عربوں کا لشکر قریب آ چکا ہے۔ خالد بن ولید، میں اس نام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ سالار، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے تعداد معنی نہیں رکھتی۔ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور یہی ہمیں ناقابل شکست بناتا ہے۔ آج یا ہم زندہ رہیں گے یا تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف فارس کی طاقت تھی اور دوسری طرف ایمان کی طاقت۔ سن 633 عیسوی، جزیرہ عرب خاموش تھا، فتنہ ارتداد بجھ چکا تھا۔ قبائل پہلی بار ایک پرچم کے نیچے کھڑے تھے، لیکن یہ خاموشی اصل طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ شمال میں روم، مشرق میں فارس، صدیوں پرانی سپر پاورز، سونے سے بھرے خزانے، فولادی لشکر اور لاکھوں سپاہی، اور ان کے سامنے ریگستان کے لوگ، سادہ لباس، سادہ ہتھیار اور مضبوط ایمان۔ فارس کے دربار میں انہیں حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ تو چھپکلیاں کھانے والے بدو ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ صحرا ایک دیوار ہے، ایسی دیوار جسے کوئی فوج پار نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ ایک بات نہیں جانتے تھے کہ اسی صحرا میں ایک ایسا انسان کھڑا ہے جسے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اسی لمحے مدینہ میں ایک فیصلہ ہوا، ایسا فیصلہ جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرحدوں کی حفاظت کا حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے حملے کا حکم دیا۔ یہ دفاع نہیں تھا، یہ اعلان تھا، اسلام اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور یمامہ سے تقریباً 10,000 مجاہدین روانہ ہوئے۔ راستے میں قبائل شامل ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لشکر 18,000 ہو گیا، لیکن دشمن تعداد میں کئی گنا بڑا تھا۔ روانگی سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشرق کی طرف روانہ ہوئے، فارس کی سرحد کی جانب، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے انہوں نے قلم اٹھایا۔ ساسانی سلطنت کے سرحدی گورنر ہرمز کے نام ایک خط، اسلام قبول کرو، امن پاؤ، یا جزیہ دو، محفوظ رہو، ورنہ تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں ایسی قوم لے کر آیا ہوں جو موت کو اتنا ہی عزیز رکھتی ہے جتنا تم زندگی کو۔ یہ الفاظ جب ہرمز تک پہنچے تو فارس کے ایوان ہل گئے۔ ہرمز غصے سے کانپ اٹھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحرائی بدو ساسانی سلطنت کو دھمکی دیں؟ وہ فوراً شہنشاہ کو اطلاع دیتا ہے، کمک طلب کی جاتی ہے، فوجیں جمع ہونے لگتی ہیں، اور یوں فارس کا تربیت یافتہ جنگی لشکر میدان میں اترنے لگتا ہے۔ ہرمز نے قسم کھائی، عربوں کو یہیں کچل دیا جائے گا، انہیں بتایا جائے گا کہ سلطنت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ہرمز یہ نہیں جانتا تھا کہ جس انسان کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ صرف سپہ سالار نہیں، وہ جنگ کو میدان میں نہیں دماغ میں کھیلتا ہے، اور اب وہ پہلی چال چلنے والا تھا۔ فارس کے سرحدی گورنر ہرمز، تاریخ اسے ایک سنگ دل اور ظالم حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اس کے مظالم اتنے مشہور تھے کہ مقامی لوگ کہا کرتے تھے، اس کے دور میں لوگ سکون سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں وہ سخت حکمران ہے، کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا۔ وہ شاہی خاندان سے تھا، دولت،
ताकत और गुरूर सब कुछ उसके पास था। सरहदी सूबे का हाकिम होते हुए भी वो खुद को शहंशाह से कम नहीं समझता था। अरबियों के बारे में उसकी राय हिकारत से भरी हुई थी। उसके नज़दीक ये लोग सिर्फ रेगिस्तानी लुटेरे थे, बेतहजीब, कमज़ोर और कमतर। ये सहराई लोग, ये तो सिर्फ रेगिस्तान के आवारा कबाइल हैं, ना तहजीब ना ताकत, ये हमारी सल्तनत का मुकाबला नहीं कर सकते। जब उसे खबर मिली कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो का लश्कर उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं आता था कि छिपकलियां खाने वाले बद्दू सासानी फौज का सामना करने की जुर्रत करेंगे। मगर फिर उसने फैसला किया, इन्हें सबक सिखाया जाएगा। वो फौरन हुक्म देता है, लश्कर को काज़िमा की तरफ बढ़ाओ। हुर्मुज़ का ख्याल था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो इसी शाहराह से आएंगे और काज़िमा के रास्ते फारिस की सरजमीन में दाखिल होंगे। वो चाहता था कि अरबों को सरहद पर ही कुचल दिया जाए, लेकिन इधर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो दुश्मन के गुरूर को पहले ही पढ़ चुके थे। ये तलवारों की जंग नहीं थी, ये ज़हनों की बसात थी। उन्होंने जान लिया था कि हुर्मुज़ सीधा सोचता है और जो सीधा सोचे वही सबसे पहले जाल में आता है। चुनाचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपना लश्कर अचानक मोड़ दिया, काज़िमा के बजाय सहरा के अंदरूनी रास्ते से हुफैर की तरफ। ये वो रास्ता था जिसकी हुर्मुज़ ने तवक्को ही नहीं की थी। जब हुर्मुज़ काज़िमा पहुंचा तो वहां खामोशी थी, न खैमे, न गर्द, न मुसलमान, सिर्फ जलता हुआ सहरा। हुर्मुज़ का गुरूर लरज़ उठा, उसे गुस्सा आया। ये अरब गए कहाँ? जल्द ही जासूस खबर लाते हैं। मुसलमान लश्कर जुनूब मशरिक में हुफैर की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर हुर्मुज़ के चेहरे का रंग बदल गया। उसके जहन में फौरन एक नाम आया, उबुल्लाह, फारस की कीमती बंदरगाह, इराक का दरवाज़ा। अगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो वहां पहुंच गए तो सासानी सल्तनत की शहरक कट जाएगी। हुर्मुज़ घबरा गया। उसने फौरन हुक्म दिया, भारी लश्कर को मोड़ दो, हुफैर की तरफ मार्च करो। 50 मील का सफ़र, जलता हुआ सहरा, भारी ज़िर्रें और थके हुए सिपाही। लेकिन गुरूर ने अक्ल को मात दे दी थी और यूं सासानी फौज फिर से चल पड़ी। उन्हें मालूम नहीं था कि वो जिस दुश्मन का पीछा कर रहे हैं वो उन्हें मैदान जंग में नहीं रेगिस्तान में तोड़ रहा है। और अभी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की असल चाल सामने आनी बाकी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने हुफैर में कुछ देर तवक्कुफ़ किया, बस इतना कि दुश्मन करीब आ जाए। अरब मुजाहिदीन सहरा के बेटे थे, गर्मी, प्यास और रेत उनके लिए अजनबी नहीं थी। लेकिन फारसी फौज, वो ज़रा बख्तर में जकड़ी हुई थी, भारी हथियार कंधों पर थे और कई दिनों की मुसलसल मार्च ने उनकी सांसें चुरा ली थीं। जैसे ही फारसी लश्कर हुफैर के करीब पहुंचा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने अचानक हुक्म दिया, वापस मुड़ो, काज़िमा की तरफ। न जंग न टकराव, सिर्फ रफ्तार। जब ये खबर हुर्मुज़ तक पहुंची तो उसका ज़ब्त टूट गया। उसकी तमाम मंसूबाबंदी बिखर चुकी थी। अब वो किसी कीमत पर इन रेगिस्तानी हमलावरों को बच निकलने नहीं देना चाहता था। गुस्सा उसके आसाब कर सवार था और इसी गुस्से में उसने अपनी पहले से निढाल फौज को तीसरी बार हुक्म दिया, वापस काज़िमा। अब तसव्वुर कीजिए, फारसी सिपाही, भारी ज़रे हैं, कंधों पर फौलाद, सरों पर आतिशी सूरज, दिनों से चलते आ रहे थे। होंठ फटे हुए, आंखें जलती रेत से भरी हुईं और जिस्म ऐसे जैसे अंदर से खाली हो चुके हों। वो चल रहे थे लेकिन रूह थक चुकी थी। और जब वो आखिरकार काज़िमा पहुंचे तो सामने एक मंजर था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो अपने ताज़ा दम मुजाहिदीन के साथ, खामोश, मुरत्तब, तैयार। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने बुलंद ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया था और सबसे अहम चीज़, पानी के चश्मे। अब फारसी लश्कर को जिंदगी की पहली ज़रूरत के लिए भी मुसलमानों से लड़ना था। प्यास से तड़पते सिपाही और सामने दुश्मन जो मुकम्मल कंट्रोल में था। हुर्मुज़ झंझला रहा था, उसके सिपाही टूट रहे थे और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो जानते थे, जंग शुरू होने से पहले ही वो दुश्मन को आधा हरा चुके हैं। मुअर्रिख़ तबरी लिखते हैं,
हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने सहरा को हथियार बना लिया था। तपिश, मसाफत और इंतज़ार, ये सब फारिस के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका था। जब लड़ाई का वक्त आया, फारसी सिपाही पहले ही प्यास, थकन और जहनी शिकस्त में डूब चुके थे और अब मैदान तैयार था। दोनों फौजें आमने सामने थीं, लेकिन हुर्मुज अभी एक आखिरी फैसला करने वाला था। ऐसा फैसला जो इस जंग को नाम देगा और तारीख उसे याद रखेगी। जंजीरों वाली जंग। हुर्मुज ने अपने सिपाहियों को देखा, थके हुए, प्यासे और लरसते हुए। उसे खौफ हुआ कि अगर पहला हमला जोरदार हुआ तो ये फौज टूट जाएगी, और इसी खौफ में उसने तारीख का वो फैसला किया जिसने इस जंग को नाम दे दिया। उसने हुक्म दिया, अगली सफों के सिपाहियों को जंजीरों से बांध दो। 5, 7, 10 आदमी एक साथ, टखनों में लोहा, कदमों में बेड़ियां। सासानी फौजी नजरिए में ये बहादुरी की अलामत थी, एक ऐलान कि हम पीछे नहीं हटेंगे, या फतह या मौत। वो चाहते थे कि अरब घुड़सवार उनकी सफ़ों को तोड़ ना सकें, कि वो लोहे की दीवार बन जाएं। लेकिन दूर से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ये मंजर देख रहे थे और वो मुस्कुरा दिए। उन्हें फौरन समझ आ गया था, दुश्मन ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद पैदा कर ली है। अब अगर ये भागना चाहेंगे तो भाग नहीं सकेंगे। ये फौज नहीं थी, ये खुद अपना कब्रिस्तान तैयार कर रही थी। फिर वो लम्हा आया जब मैदान खामोश हो गया। हुर्मुज घोड़े पर सवार आगे बढ़ा, बुलंद आवाज में ललकारा, क्या कोई है जो मेरा सामना करे? मर्द का मुकाबला है मर्द से। खालिद कहाँ है? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने यह आवाज सुनी। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और सफ़े इस्लाम से निकल आए। 2 सिपा सालार, 2 तकदीरी तलवारें, चारों तरफ सन्नाटा। हुर्मुज गुरूर दिखाते हुए घोड़े से उतरा, इशारा किया, पैदल लड़ो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु भी उतर आए। रेत पर 2 साए आमने सामने थे। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते रहे, फिर फौलाद टकराया। हुर्मुज ने वार किया, रोक लिया गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पलट कर ज़र्ब लगाई, हुर्मुज बच गया। तलवारें चमकी, चिंगारियां उड़ी। पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था, लेकिन हुर्मुज ईमानदार जंग नहीं चाहता था। उसने पहले ही अपने कातिल छुपा रखे थे। जैसे ही वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से गुत्थम गुत्था हुआ, उसने इशारा किया। अचानक चंद फारसी जंगजू दौड़ते हुए आगे बढ़े। ये धोखा था, बदअहदी थी, कत्ल की साजिश थी। मुसलमान लश्कर में हलचल मच गई और उसी लम्हे हजरत कौका बिन अम्र अत-तमीमी रजी अल्लाह अन्हु बिजली की तरह लपके। उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, पहुंचते ही 2 हमलावरों को काट डाला। यही वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की, हुर्मुज को जमीन पर पटका और एक ही वार में सासानी गुरूर का सर कलम कर दिया। हुर्मुज खत्म हो चुका था। सासानी गवर्नर मिट्टी में पड़ा था। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ये हमले का ऐलान था और अब मुसलमान लश्कर आगे बढ़ रहा था और जंजीरों में बंधी फारसी फौज अपनी मौत की तरफ। मुसलमान लश्कर एक सैलाब की तरह टूट पड़ा। हल्के हथियार, तेज रफ्तार घोड़े और ईमान से भरी हुई सफ़ें। फारसी फौज भागना चाहती थी मगर भाग नहीं सकती थी। एक गिरता तो 5-7 गिरते, एक मर जाता तो पूरी कतार अटक जाती। जंजीरें जो ताकत की अलामत थीं, कब्रों में बदल गईं। रेत खून से भीग गई, भारी जरहें मौत का बोझ बन गईं और सासानी गुरूर चंद लम्हों में खाक में मिल गया। सूरज ढला तो मैदान खामोश था। हजारों फारसी सिपाही जंजीरों समेत जमीन पर पड़े थे और मुसलमान फतह के बावजूद सजदे में थे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ऐलान था कि फारिस जैसी सुपर पावर भी अब महफूज नहीं रही। ये मुसलमानों की फारस के खिलाफ पहली फैसला कुन फतह थी। भारी असलहा, जरहें, माले गनीमत सब मुसलमानों के हाथ आया। मदीना पहुंचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने शुक्र अदा किया और पूरी उम्मत ने पहली बार महसूस किया
दुनिया की बड़ी सल्तनतें टूट सकती हैं। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो नहीं रुके। वो जानते थे ये तो सिर्फ दरवाजा था, असल तूफान अभी आना था। उन्होंने शुमाल की तरफ रुख किया, जहां फारस की मरकजी फौजें मुंतजिर थीं और जहां तारीख का एक और नाकाबिल यकीन बाब लिखा जाना था। अगर आपको इस्लाम की ऐसी जंगें जानना पसंद हैं जहां फतह तलवार से पहले अक्ल से हासिल की गईं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। और सोच कर देखें, क्या असल ताकत तादाद में होती है या फैसले के लम्हे में?